Good afternoon, everyone. Am I audible? I'm audible, right? Okay, great. So we were doing the last topic that we had done as image of a line in the plane. So let us just do a question based on this. Write down the first one. Find the image of a line. Find the image of a line x minus 1 by 9 is equal to y minus 2 by minus 1 is equal to z plus 3 by minus 3. In the plane 3x minus 3y plus 10z minus 26 is equal to 0. So let's just quickly do this and let me know the answer. Getting?
Just tell me the procedure, Deepak. Hello. If you just observe this plane is 3x minus 3y plus 10z minus 26 equal to 0. The normal to this plane, the direction ratios of the normal to this plane are 3, minus 3 and 10. And if I see this line, the direction ratios of this are 9, minus 1 and minus 3. If I find the dot product for this, 3 into 9 plus minus 3 into minus 1 plus 10 into minus 3. This will come out to be 0, right? So that means this line is perpendicular to the normal. That means line is parallel to the plane. Line is parallel to the plane, correct? Line is parallel to the plane. So तो इसका जो इमेज होगा तो उसका इसका जो इस लाइन का जो इमेज होगा प्लेन में, दैट इज दिस, इसके डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे सेम. क्या? 9, minus 1, minus 3. बस एक पॉइंट चाहिए अपने को. तो इस पे एक पॉइंट वो अपने को पता ही है, क्या? 1, 2, minus 3. इसका इमेज निकालना है बस. इसका इमेज, लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी, सो इट विल बी a minus 1 by प्लेन का देखो 3 is equal to b minus 2 by minus 3 is equal to c plus 3 by 10 is equal to minus 2 times what? ये 1 2 minus 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 into 1 minus 3 into 2 plus 10 into minus 3 minus what? 26 divided by a square plus b square plus c square. What is it coming out to be? This will be 3 minus 6 minus 30 minus 36 minus 26. That is minus what? 62 divided by, this will be 9 120. So 118, right? No, wait. This is 63, no? This is 3 minus 6 minus 3 minus 33. Okay. Minus 59, sorry. So this will be 1. So from here we'll get a is equal to 3 plus 1 4, b is equal to 2 minus 3 minus 1, c is equal to minus 3 plus 10, that is 7. So the equation of this line is x minus 4 by 9 is equal to y plus 1 by minus 1 is equal to z minus 7 by minus 3, right? Getting? Then any doubt in this? No, sir.
Okay, we'll move to the next topic, equation of a plane bisecting the angle between two planes, bisecting the angle between two planes. ये वेक्टर फॉर्म में तो किया ही होगा आपने, हाँ वेक्टर फॉर्म में तो किया ही होगा, राइट? तो जैसे लेट्स सपोज वी हैव टू प्लेन्स, एक तो प्लेन ये रहा, and let's suppose its equation is a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, and another plane is like this. Another plane is like this, huh? And this is let's suppose ऐसा पूरा नीचे तक, this is let's suppose a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. तो एक प्लेन जो इनके बीच में होगा, जो एंगल बाइसेक्ट करेगा, इन दोनों का जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट करेगा, that will be like something like this. यहाँ पे this angle will be equal to this angle. तो इस प्लेन का इक्वेशन अपने को निकालना, तो जैसे स्ट्रेट लाइन था ना, स्ट्रेट लाइन 2D में, अब उसमें क्या करते थे, उसमें कैसे निकालते थे कि भाई अगर ये लाइन है दो a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे आता था, दो एंगल बाइसेक्टर है तो कैसे आता था, a2x plus b2y plus c2 divided by under root a2 square plus b2 square is equal to plus minus a1x plus b1y plus c1 divided by under root a1 square plus b1 square, राइट? ऐसे करते थे, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी होगा, बट होगा क्यों वो भी देख लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट इन जनरल x, y ऑन दिस, सो सिंस दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर प्लेन, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देके एंड इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देके, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे, राइट? ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे, दैट मींस लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज let's suppose L, and this is let's suppose M. So PL must be equal to PM. PL क्या आएगा, that we know a1x plus b1y plus c1 z plus d1 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square का mod is equal to PM क्या आएगा, a2x plus b2y plus c plus d2 divided by under root a2 square plus b2 square plus c2 square is का mod, and when we will remove this modulus we'll get a1x plus b1y plus c1z plus d1 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by under root a2 square plus b2 square plus c2 square. ठीक है ये, राइट? ये लिख लो जल्दी से।
देखो अब इसमें ये तो ठीक है, बट जैसे 2D में था कि भाई एक बाइसेक्टर है ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल का बाइसेक्टर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, मतलब प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। 2D में हम पढ़ते थे, ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल वेर इज एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई जेड बेटा, यहाँ पे एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, अब उसमें प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला, बताओ याद है क्या? 2D में कैसे करते थे लाइन के लिए? तो उसमें करते थे कि भाई मेक द कांस्टेंट्स पॉजिटिव, बेसिकली मेक डी हेयर इन दिस मेक D1 एंड D2 ग्रेटर देन 0, अगर नहीं है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन टेक प्लस साइन, टेक प्लस साइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, find the bisector of the angle containing origin, find the bisector of the angle containing origin of the planes 4x minus 5y plus 3z, 4x minus 3y plus 5z plus 7 equal to 0, and 5x plus 12y minus 13z minus 8 equal to 0। तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले अपने को कांस्टेंट्स मतलब D1 D2 मतलब कांस्टेंट्स पॉजिटिव बनाने। अब इसमें तो कांस्टेंट पॉजिटिव ही है, फर्स्ट इक्वेशन में तो कांस्टेंट जो है वो 7 है, वो पॉजिटिव ही है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एंड सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट नेगेटिव है, -8 है ना, D2 इज नेगेटिव -8, तो इसको माइनस से पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन को, आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1 प्लस 13z प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे D1 D2 मतलब कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव हो गए। अब क्या करना है? नथिंग, जस्ट टेक द पॉजिटिव साइन आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव, so that will be the equation of the bisector of the angle containing origin। एंड अगर पहले से पॉजिटिव है दोनों तो दो, कुछ मत करो, कोई कुछ चेंज नहीं करना। इसका रीजन क्या है, करते हैं इसका रीजन भी, पहले लिख लो एक बार, अभी करते हैं अभी करते हैं। रीजन भी समझते हैं इसका कि ऐसा क्यों, पहले तो मैंने बस बताया करना कैसे, रीजन भी समझते हैं।
ठीक है, लिख लिया। रीजन समझते हैं, देखो ध्यान से। जैसे लाइन के लिए आपको याद होगा कि इफ वी हैव अ लाइन दिस, तो ये लाइन पूरे प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करती है, एक ये वाला एंड एक ये रीजन, राइट। एंड इसमें क्या है कि एक रीजन ऐसा होगा जिसके लिए अगर मैं लेट्स सपोज ये लाइन की इक्वेशन लिखूं, चलो मैं प्लेन ही कंसीडर कर लेता हूँ, सीधा प्लेन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन पूरे स्पेस को दो रीजन में डिवाइड करेगा, इनफैक्ट तीन में। एक एक ये अबव द प्लेन, एक ऑन द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन, राइट। लेट्स सपोज इस प्लेन की इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1z plus d1 इक्वल टू 0, राइट। ओके, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर लूं अल्फा कॉमा बीटा, एंड कोई पॉइंट यहां पर लूं लेट्स सपोज अल्फा 1 बीटा 1, दिस इज अल्फा 2 बीटा 2 एंड दिस इज अल्फा 3 बीटा 3, तो होगा क्या कि ये अल्फा टू कॉमा बीटा टू इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस एक्सप्रेशन को ये जीरो बनाएगा, यस और नो। वी नो ना, a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2, सॉरी गामा 1 3d है ना, गामा 2 गामा 3, b1 बीटा 2 plus c1 gamma 2 plus d1, this will be 0, right। एंड अल्फा एंड ये पॉइंट ए और सी में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाएगा, एंड अगर लेट्स सपोज ये इस एक्सप्रेशन के लिए पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो ये नेगेटिव साइन देगा, ऑपोजिट साइड में है ना, यस और नो। तो लेट्स सपोज फॉर ए दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, मतलब लेट्स सपोज a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1 प्लस c1 गामा 1 plus d1 is greater than 0. So that means a1 alpha 3 plus b1 beta 3 plus c1 gamma 3 plus d1 will be less than 0, right। in fact अगर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है इस एक्सप्रेशन के लिए, तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्पेस में, मतलब ये सारे पूरे रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस सबके करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव ही होगा। होगा क्या? यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम आते हैं उस पे कि वो क्यों किया, ये सब क्यों किया कि भाई d1 d2 पॉजिटिव एंड टेक प्लस साइन। लेट्स सपोज अब ये मेरा दूसरा प्लेन था, ये दूसरा प्लेन था, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लेन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये रीजन को यहाँ पे कितने एंगल में डिवाइड कर रहे हैं? चार एंगल दिखते हैं क्या? चार एंगल, एक दो तीन एंड चार, राइट। अब इन चार एंगल में से किसी एक एंगल में ओरिजिन होगा, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं ओरिजिन इधर प्रेजेंट है, राइट। अब ओरिजिन 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 अगर मैं मान लूं कि ओरिजिन a1x प्लस, मतलब ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग ये जो ये प्लेन है A1, ये इस प्लेन की इक्वेशन a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। लेट्स सपोज ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग मैं इसका साइन निकालूं, इस प्लेन के लिए साइन निकाल लूं, तो a1 इंटू 0 प्लस b1 इंटू 0 प्लस c1 इंटू 0 प्लस d1 विच विल कम आउट टू बी d1, ठीक है। अगर ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है, लेट्स सपोज इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, एंड ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग ही इस
प्लेन का साइन, इस प्लेन के लिए a2 इंटू जीरो प्लस b2 इंटू जीरो प्लस c2 इंटू जीरो प्लस d2, ये भी पॉजिटिव, ये d2 तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है लेट्स सपोज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो अल्फा, ये जो एक प्लेन यहाँ पर होगा ओरिजिन वाले एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी सेम साइन शो करेंगे, हमारे इस प्लेन के लिए भी और इस प्लेन के लिए भी। जैसा ओरिजिन साइन दे रहा है वैसा ही साइन इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड वही साइन देगा। यस और नो? भैया एक्स वाई जेड को अगर आप देखो तो एक्स वाई जेड और ओरिजिन हमारे ये नीचे वाले प्लेन के सेम साइड में है, तो जो ओरिजिन का साइन होगा वही एक्स वाई जेड का साइन होगा। ऐसे ही ओरिजिन और एक्स वाई जेड हमारे ये ऊपर वाले प्लेन के सेम साइड में है, तो जो ओरिजिन का साइन होगा, ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग साइन होगा वही एक्स वाई जेड का भी साइन होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का भी साइन होगा। एक जनरल पॉइंट हमारे एंगल बाइसेक्टर प्लेन वाला एक्स वाई जेड। तो समझेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे d1 d2 को पॉजिटिव बना दिया। d1 d2 को पॉजिटिव बना के फायदा क्या हुआ, d1 d2 को पॉजिटिव बनाकर फायदा क्या हुआ कि ओरिजिन का साइन मैंने पॉजिटिव बना दिया। ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग देखो डी ओरिजिन को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डालूं तो d1 d2 आ रहा है, तो जो d1 d2 का साइन होगा वही ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग हमारे एक्सप्रेशन का साइन होगा। यस और नो? तो मैंने ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग, मैंने d1 d2 को पॉजिटिव बनाने से ये किया कि ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग दोनों प्लेन्स का जो साइन है वो पॉजिटिव बना दिया, राइट? दोनों प्लेन्स के एक्सप्रेशन का जो साइन है वो पॉजिटिव बना दिया d1 d2 पॉजिटिव करके ओरिजिन के लिए। अब अगर, अब जैसे ये एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड की जगह एक काम करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं एच के एल, एच के एल, फिर इसमें एच के एल की जगह एक्स वाई जेड रिप्लेस कर देंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं ना लोकस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन से और इस प्लेन से वो सेम आएगा। दैट मीन्स a1h प्लस b1k प्लस c1l प्लस d1 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू a2h प्लस b2k प्लस c2l प्लस d2 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। करेक्ट? अब ध्यान से देखो, सिंस मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखना, सिंस फॉर मैंने जब d1 d2 पॉजिटिव बना दिया तो आई नो कि भाई a1 पे d1 d2 पॉजिटिव है, ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग दोनों प्लेन्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है। सो कैन आई से दैट a1h प्लस b1k प्लस c1l प्लस d1 विल आल्सो बी पॉजिटिव? यस और नो? मतलब एच के एल जो पॉइंट है वो भी सेम साइन देगा ना ओरिजिन वाला, और ओरिजिन क्या दे रहा है, पॉजिटिव, तो एच के एल के करस्पॉन्डिंग भी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली सेकंड प्लेन में भी, सेकंड प्लेन के लिए भी मैंने d2 देखो पॉजिटिव बना दिया, मतलब ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग साइन उस प्लेन का पॉजिटिव बना दिया। तो एच के एल सेम ही साइड में एज ओरिजिन, तो वो भी सेम ही साइन देगा पॉजिटिव। और सिंस ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहना है से जब मैं मॉड हटाऊंगा तो प्लस साइन के साथ खुलेगा मॉड। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये रीजन है। तो पॉजिटिव साइन ले लिया, लेकिन ये तभी हो पाया जब d1 d2 को हमने पॉजिटिव बना दिया है ना, उसके बाद तो प्लस साइन ले लिया। रीजन क्या, क्योंकि ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, जब मॉड हटाएंगे तो वो प्लस ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव है ना। ठीक है, ओरिजिन कंटेनिंग ऐसे करना। तो नॉन ओरिजिन कंटेनिंग वाला क्या होगा, जब d1 d2 को पॉजिटिव बना दो और उसके आगे माइनस लगा दो तो नॉन नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल का बाइसेक्टर आएगा, राइट?
ठीक है, लिख लो, ये अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है तो पूछो। Done. After putting origin in equation, what you have done? नहीं, ओरिजिन को मैंने इक्वेशन में पुट किया, तो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग जो है एक साइन आएगा। अगर और ओरिजिन को जब पुट किया तो मुझे d1 मिला ना, मतलब जो d1 का साइन वही ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग हमारे एक्सप्रेशन का साइन ना, प्लेन का। तो अगर मैंने d1 को पॉजिटिव बना दिया, मतलब ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग साइन पॉजिटिव बना दिया। ऐसे d2 को पॉजिटिव बना दिया तो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग उस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव बना दिया। अब जो ओरिजिन का साइन है वही हमारे एच के एल का साइन होगा, एच कॉमा के कॉमा एल का, क्योंकि सेम साइड में है प्लेन के, एच कॉमा के कॉमा एल एंड ओरिजिन। एंड अगर मैंने एक बार d1 को पॉजिटिव बना दिया, मतलब ओरिजिन का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब एच कॉमा के कॉमा एल का भी साइन पॉजिटिव है, और एच कॉमा के कॉमा एल का साइन पॉजिटिव है, मतलब ये। एंड अगर ऐसा है तो जब मॉड्यूलस हम रिमूव करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। हर्ष, ठीक है, तो d1 d2 अगर पॉजिटिव बना दिया तो यहाँ पे अपने को प्लस मिलेगा बस। स्क्रॉल अप इतना ही तो है, ये है फिर तो। श्रुति, ठीक है, हो गया ये। ओके, ठीक है, तो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। देन विल कम टू बाइसेक्टर ऑफ द, एक और कंसेप्ट है इसमें, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखो, दो प्लेन्स हैं, अगर जैसे लेट्स सपोज दिस, एंड दिस, ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच में अब दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एक्यूट एंगल एंड अनदर वन दिस ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब यहाँ पे एक बाइसेक्टर तो ये आएगा, इधर वाला, ये वाला, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। एंड एक बाइसेक्टर इस साइड आएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट। तो अब दो तो आ रहे हैं अपने पास, कौन सा, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग, एक माइनस के। अब प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या माइनस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, वो कैसे पता करेंगे? हाँ जी, कैसे पता करेंगे? निशान करेक्ट, सही है। देखो क्या करूंगा मैं, सी आई विल हैव टू इक्वेशंस, राइट। एक तो आएगा एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2y
plus c2z plus d2 by under root of a2 square plus b2 square plus c2 square, राइट। एक बाइसेक्टर की इक्वेशन ये होगी एंड दूसरे की इक्वेशन क्या होगी, a1x plus b1y plus c1z plus d1 by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to minus of a2x plus b2y plus c2z plus d2 by अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो कैसे पता करेंगे? देखो क्या करना, मैं एक कोई भी रैंडम पॉइंट लूंगा, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लूंगा जो हमारे ये दो प्लेन है ना, उन पर ये जो दो प्लेन है जो एक्चुअल हमारे ओरिजिनल प्लेन्स है, उनमें से कोई भी एक प्लेन चूज कर लो। जैसे लेट्स सपोज आई विल चूज दिस वन। इस वाले प्लेन पे अगर मैं देखूं, एक पॉइंट लेता हूं, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं इस एंगल बाइसेक्टर वाले प्लेन से, मतलब ये इससे एंड इससे कोई भी रैंडम पॉइंट इस पे मैंने लिया, कोई भी ले लो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, जो आपको एकदम देखते ही क्लिक कर जाए, हाँ 0 0 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 1 या फिर कोई भी रैंडम। हाँ ठीक है, कोई भी रैंडम एक्स और वाई को 0 रख दो, जेड आ ही जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक रैंडम पॉइंट, इसका डिस्टेंस यहां से निकालो और इसका डिस्टेंस इससे निकालो, कौन सा क्लोजर होगा? एक्यूट एंगल वाला क्लोजर होगा क्या? अरे बोलो। यस। हाँ, एक्यूट एंगल वाला क्लोजर होगा। अब एक इक्वेशन ये है, इससे लेट सपोज इसका जो डिस्टेंस है वो P1 है उस हमारे पॉइंट का, एंड इससे जो डिस्टेंस है हमारे पॉइंट का ओरिजिनल प्लेन पे वो P2 है। ठीक है, तो जो D1 ले लेते हैं, P से वो प्लेन आने लगता है, तो इफ D1 इज लेस देन D2 एंड लेट सपोज दिस इज एक्चुअली प्लेन 1 या फिर एंगल bisector, I will say plane 1. Let's suppose this is plane 1 and let's suppose this is plane 2. If D1 is less than D2, that means P1 is acute angle bisector and P2 is obtuse angle bisector. Getting? Yes or no? If D1 is greater than D2, then P1 is obtuse angle bisector and P2 is acute angle bisector. ठीक है, तो हम एक्चुअली में दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेंगे, प्लस लेकर भी माइनस लेकर भी। अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो ओरिजिनल दो गिवन प्लेन्स है उसमें से किसी एक प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दो परपेंडिकुलर ये दोनों प्लेन्स से, जिसका डिस्टेंस उससे कम होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, जिस प्लेन का डिस्टेंस उस पॉइंट से कम होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, एंड दूसरे वाला ऑब्वियसली देन इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
लेकिन क्या हर बार इतनी मेहनत करनी है कि दोनों इक्वेशन निकाल के एंड देन वी फाइंड आउट कि भाई पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, फिर पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं हाँ कौन सा ऑब्ट्यूज है एक्यूट है। अब ऑब्ट्यूज निकालना ही नहीं है, बट हम तो दोनों ही निकाल रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि ऑब्ट्यूज कौन सा एक्यूट है। नहीं, जरूरत नहीं है। इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं ना, इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, थोड़ा उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, तो आई वोंट गो इनटू द प्रूफ। 2-3 पेज खा जाएगा, बट हाँ मेथड यही है, मेथड यही है। प्रूफ का जो बेस है वो यही है जो मैंने अभी समझाया, बट उस प्रूफ में मैं जाऊं और फिर दैट विल टेक मोर देन 30 मिनट्स। समझाने में बहुत टाइम लगेगा एंड वो रिक्वायर्ड भी नहीं है प्रूफ उसका। बट हाँ उसका जो बेस है कि वो आएगा कहाँ से, उसका बेस यही है क्या, कि भाई डिस्टेंस जिसका कम होगा दैट विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो इसी की हेल्प से वी कैन प्रूव एंड वी कैन जनरलाइज द थिंग। सो आई विल जस्ट टेल यू द रिजल्ट, सो दैट आपको ना इतनी मेहनत ना करनी पड़े। पहले तो दोनों प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं एंड देन कोई एक जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं, कोई एक रैंडम पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं दोनों प्लेन से एंड फिर बता रहे हैं कि कौन सा एक्यूट ऑप्टिक। तो इतना टेंशन नहीं लेने का। क्या करना, कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लेना बस। फर्स्ट, कि मेक D1 D2 पॉजिटिव, वही काम जो हमने उसमें किया था, राइट? किसमें, वो एक ओरिजिन कंटेनिंग वाले में। मेक D1 D2 पॉजिटिव, ठीक है। देन फाइंड A1 A2 प्लस, ये D1 D2 पॉजिटिव बनाने के बाद, हाँ, जो नए A1 A2 B1 B2 C1 C2 होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। अब अगर यहाँ दो केस बनते हैं, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज पॉजिटिव, एक केस। दूसरा केस बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या, बोलो। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करें, याद है क्या किसी को? acute angle. एक्यूट एंगल क्या, पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा कि नेगेटिव वाला एक्यूट होगा, प्लस वाला या माइनस वाला? नहीं पता, पॉजिटिव वाला, बिल्कुल सही। पॉजिटिव साइन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेने पे एक्यूट एंड नेगेटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेने पे एक्यूट एंड पॉजिटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज। मतलब इसका जो साइन आता है वही साइन आप लोगे तो एक्यूट मिलने वाला। ऐसा ही बोल सकता हूँ ना, इसका जो साइन आया वही साइन लेने पर एक्यूट आएगा। क्लियर है? इसको ऐसे याद रख लो। डिराइव कैसे हुआ, बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया, बट दैट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड वो यूजफुल नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ती उसकी प्रूफ की, ठीक है। तो जो साइन, पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, D1 D2 को पॉजिटिव बना दो एंड जस्ट कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर वो पॉजिटिव आता है, मतलब उसका जो भी साइन आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो भी साइन आएगा, वही साइन लेने पर आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और उसका ऑपोजिट साइन लेने पर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, डन, लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करो, फटाफट आंसर बता देना, ये जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया इसी को यूज करके बताओ। फाइंड द obtuse angle bisector and the equation of obtuse angle bisector between the planes 2x minus y plus 3z plus take it as 2z plus 3 equal to 0 and 3x minus 2y plus 6z plus 8 equal to 0। obtuse angle bisector कौन सा होगा ये बताना है अपने को। obtuse angle bisector की इक्वेशन बताना। हाँ जी, क्या आ रहा? फाइनल आंसर बताओ ना, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा? श्योर ईशान? एक बार दोनों निकालना। दोनों निकालना एक बार। अच्छा ठीक है, चलो ऑप्टिव। यहाँ पे d1 और d2 तो पॉजिटिव ही हैं। अगर हम देखें 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। d1 और d2 तो 3 और 8 पॉजिटिव है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालते हैं। तो 2 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा। तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे ऑप्टिव्स के लिए कि माइनस साइन लेंगे? Minus. माइनस साइन लेंगे। तो माइनस साइन क्या आएगा? 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36। So this will be 2x minus y plus 2z plus 3 divided by 3 is equal to minus of 3x minus 2y plus 6z plus 8 divided by, this will be 7. So we have 7 plus 9. So 14 plus 9, 23x. Oh, wait. I have just done a wrong step here. Wait. Positive will give obtuse. Wait. जो सेम साइन है, सेम साइन लेने पर ऑप्टिव्स मिलेगा। जस्ट रिवर्स इट।
because we'll have that angle cos, हाँ पॉजिटिव पे मतलब सेम साइन लेने पर ऑप्टिव, just change it, हाँ पॉजिटिव सेम साइन लेने पर ऑप्टिव, सेम साइन लेने पर ऑप्टिव। सो ये एक्चुअली में अपने को सेम साइन लेने पर ऑप्टिव्स, हाँ ऑप्टिव्स इससे आएगा अपना, ठीक है सेम साइन लेने पर ऑप्टिव्स, प्लीज चेंज इट, हाँ सेम साइन लेने पर ऑप्टिव्स, मतलब जो इसका साइन है वही साइन लेने पर ऑप्टिव्स, जो इसका साइन है वही साइन लेने पर ऑप्टिव्स, तो हमें प्लस लेना होगा यहाँ पे। So this will be 14 minus 9, that is 5x, minus 7 plus 6, that is minus y, then 14 minus 18, that is minus 4z, and 21 minus 24 minus 3. So this will be the obtuse angle by side. Same sign लेने पर obtuse, ध्यान रखना same sign लेने पर obtuse, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 का जो साइन है वही साइन लेने पर obtuse। Done? Then ठीक है, we'll move to the two sides of a plane। अभी हमने इसके बारे में बात की थी एंड 2D में भी इसके बारे में हम काफी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एंड अभी हमने इस चीज का यूज भी किया था, बट वी नीड टू जस्ट प्रूव दिस कि ऐसा क्यों। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि लेट्स सपोज वी हैव दिस plane ax plus by plus cz plus d equal to 0, and let's suppose we have a point here p which is x1 y1 z1, and if let's suppose there is a point q x2 y2 z2, and we know we know that this point q x2 y2 z2, if it is on the opposite side of the plane, then we know that what if q is on opposite side of plane, then we know what do we know, that ax1 plus by1 plus cz1 plus d into ax2 plus by2 plus cz2 plus d, this will be what less than 0, and if q is on same side of the plane, then this into this will be greater than 0, but why, how can we prove this कि ऐसा ही होगा।
पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड हैव सेम साइन, बट क्यों भाई, वही तो प्रूफ करना है, पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड हैव सेम साइन। हाँ वही पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाला कैसा किया था, कैसे किया था अमान? चलो देखते हैं। मैं ना इसको ज्वाइन कर देता हूँ पी एंड क्यू को। लेट्स सपोज जो पी एंड क्यू को ज्वाइन करने पर ये पॉइंट आर है प्लेन पर, इस लाइन पी क्यू में, पी क्यू एंड प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आर है, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई अज्यूम कि ये आर जो है पी क्यू को डिवाइड करता है इन एम इज टू एन, ये एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब पी आर इज टू आर क्यू इज इक्वल टू एम इज टू एन, ठीक है। तो can I say that coordinates of r will be mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n, comma mz2 plus nz1 by m plus n, ऐसा होगा क्या? यस, ठीक है। अब as we know that r lies on this plane, since r lies on this plane, so can I say that ये जो coordinates हैं r will satisfy this equation, right? So ये satisfy करेगा, तो इसको substitute करते हैं, वो satisfy करेगा ना इस equation को। तो a into x की जगह r के coordinates mx2 plus nx1 by m plus n plus b times my2 plus ny1 by m plus n plus c times mz2 plus nz1 by m plus n plus d equal to 0, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। इफ आई टेक दी एलसीएम सी, तो ये m प्लस एन मल्टीप्लाई होगा d से, एंड m प्लस एन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 उधर, राइट। सो इट विल बी, देखो m वाले में सारे इकट्ठे कर दो, तो इट विल बी लाइक a इंटू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस बी इंटू एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस सी इंटू एम जेड टू प्लस एन जेड वन प्लस डी इंटू एम प्लस एन, दिस विल बी 0, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, एम प्लस एन उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब m वाले सारे मैं एक साथ इकट्ठे करता हूँ, एक साथ लेकर के आता हूँ, क्या आएगा, m इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी, राइट। ऐसे ही n के साथ क्या क्या है, a इंटू एक्स, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0, करेक्ट। Now can I say that m by n is equal to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by ax2 plus by2 plus cz2 plus d, सही है क्या? ठीक है, यहाँ तक देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लो, पूरा लिख लो, इतना लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो।
ठीक है, डन। अब देखते हैं इससे क्या। if can I say that if P and Q are on opposite side, then can I say that R will divide PQ internally? Yes or no? Internal division होगा वो। And if R divides PQ internally, can I say that ratio M by N should be positive? And hence, can I say that minus of AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D divided by AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D should be positive? And hence, can I say that AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D upon AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D should be negative? And अगर दो नंबर्स का डिवीजन नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा क्या? If let's suppose A by B is negative, so can I say that A into B is negative? है ना, सही है ना? So that means AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D into AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D. This should be negative, right? दो नंबर्स को डिवाइड करके नेगेटिव आ रहा है, मतलब तो मल्टीप्लाई करके भी तो नेगेटिव ही आएगा ना भाई। तो ऑपोजिट साइड का तो हो गया। अब अगर सेम साइड पे है, if P and Q are on same side, then I can say that R will divide what? R will divide PQ. कैसे? Externally. And अगर externally divide कर रहा है, so that means M by N is negative. And from here we'll say that minus of AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. This should be negative, मतलब this divided by this. And hence एक step छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, and hence I can say that AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D into AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D. This should be what? Positive, right? ऐसे ही प्रूव करते हैं 2D में भी, नहीं किया क्या कभी? लिख लो जल्दी से। टूडी में प्रूव नहीं किया था, कोई नहीं, टूडी में भी ऐसे ही प्रूव होगा। जेड की जगह जेड वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी तो सेम ही है एकदम, है ना। वहाँ यहाँ प्लेन है, वहाँ लाइन होगा, कोई नहीं, एकदम सेम प्रूव होगा। जेड वाला पार्ट नहीं आएगा बस। ठीक है, हो गया क्या? ठीक है क्या? अच्छा वेट, लेट मी जस्ट चेक एक बार अपना जो है
मॉड्यूल का मॉड्यूल में ना एक ये स्फेयर भी दिया हुआ है, बट है नहीं सिलेबस में। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बस एक आइडिया कि स्फेयर होता क्या है, कैसे इक्वेशन लिखनी है, बट उससे क्वेश्चन आएगा नहीं कभी भी, ठीक है। ना आया है ना ही आएगा। आई जस्ट टेल होता क्या, थोड़ा बेसिक कुछ पता होगा तो बहुत है, चलेगा। हाँ बुकलेट में होंगे क्वेश्चंस, बट लेट मी जस्ट टेल यू इट इज नॉट इन द सिलेबस। मैं बता देता हूँ आपको कि है क्या स्फेयर में, ठीक है, बट इट इज इन द, कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन, ना होगा, जेई मेंस में भी नहीं है, एडवांस में भी नहीं है, ठीक। अब अगर ऐसे मॉड्यूल में बुक्स वगैरह में तो क्या है, इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सब कुछ दिया होता, बट है ही नहीं वो, अपने को फायदा नहीं है। थोड़ा सा अपने को बस ठीक है आइडिया ले लेते हैं क्या चीज़ है, बट फायदा थोड़ी है पढ़ के भाई, आएगा ही नहीं कभी तक, अभी तक कभी कभी आया ही नहीं है, ना मेंस में ना एडवांस में। स्फेयर देख लेते हैं, चलो भैया स्फेयर क्या है, सर्कल क्या है बताओ। सर्कल का आपको डेफिनेशन याद हो अगर, सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is constant। बट वो जब हम बात करते हैं वो एक प्लेन में बात करते हैं, 2D में बात करते हैं। स्फेयर में क्या होगा, वही डेफिनेशन है, बस 3D में एप्लीकेबल है। लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way, which moves in such a way that its distance, its क्या लिखते हैं, its distance from a fixed point, from a fixed point is constant, from a fixed point is constant। या एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज अल्फा बीटा गामा, एंड एक कोई रैंडम जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है ना, ये लेट्स सपोज आर, ये कांस्टेंट है। तो बस क्या करना है अपने को, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला ही तो लगाना है, वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर। तो ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर खत्म। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड द सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर, and r is the radius, and r is the radius of sphere, ठीक है। अब काफी बुक्स में ना क्या दिया होता है कि इसको भाई, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन भाई
और तो और वो कॉर्ड की जनरल इक्वेशन सब भर देंगे, बट फायदा नहीं ना भाई, आएगा ही नहीं, गारंटी है नहीं आएगा। पढ़ना मत अगर किसी बुक में ये सब मिल जाए, टाइम वेस्ट है टोटल, जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। पैराबोलॉइड ये सब कोई इक्वेशन है ही नहीं, पैराबोलॉइड, स्फेयर, एलिप्सॉइड, फैंसी फैंसी बता दूं मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बट पढ़ा के फायदा क्या भाई, टाइम वेस्ट थोड़ी करना अपने को, स्मार्ट वर्क चाहिए, फालतू की मेहनत नहीं करनी है। जिससे आना है जो चीज सिलेबस में उसको डिटेल में चाहो चाहे कहीं भी। अब ये वाला प्रूफ है, ये वाला प्रूफ आपको मिलेगा नहीं कहीं, मैं फिर भी करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये है सिलेबस में, इसका काम आएगा। आपने भी बोला ना कि रिजल्ट ही बस पता चला था अपने को 2D में, बट भाई जब जो चीज सिलेबस में उसके डिटेल में जानना है चाहे कितना भी, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ के क्या फायदा अपने को ना। ठीक है, Done, sir. ओके, इतना बहुत है, बस इसको ये ऐसे ही रखो कि भाई हाँ कुछ नहीं, इसका क्या मतलब है। इसका एक वो, हाँ ठीक है, इसका मैं वो बता देता हूँ एक, भाई शायद कर लिया होगा वेक्टर फॉर्म में, कि जैसे ये स्फेयर है, ये है ना अपना स्फेयर, तो वैसे स्फेयर है। अब इसका अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखनी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना ना। ये पॉइंट है अपना, लेट्स सपोज इसका सेंटर अल्फा वेक्टर, एक जनरल एक पॉइंट ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और ये सेंटर ओ, सेंटर सी, इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर है। तो क्या करना है, ये आर माइनस अल्फा वेक्टर, आर वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर का मॉड, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, लेट्स सपोज के, वेयर के इज द रेडियस, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसके इक्वेशन को, ठीक है, बहुत है, इतना इतना बहुत है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में जो एक दो होंगे वो कर लेना, बहुत है, अलग से ढूंढ के मत करना इसको। उसमें क्या है कि डायमीटर फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म सब दे देंगे बुक में ना, जो पढ़ना नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है चलो, इसके मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, कि इतना बहुत है, उससे ज्यादा अपने की करने की जरूरत नहीं होगी, थोड़े जनरल से क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे लिखो एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अच्छा एक चीज और, इसका अगर आपको जनरल इक्वेशन देखनी है तो एक बार उसको देख लो, बस जैसे सर्कल की होती है ना, वैसे इसका भी है, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई माइनस, सॉरी, माइनस 2 बीटा जेड माइनस 2 गामा वाई, 2 गामा जेड 2 बीटा वाई है, ये 2 बीटा वाई माइनस 2 गामा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो इसकी अगर मैं जनरल इक्वेशन देखूं तो जिसकी जनरल इक्वेशन है समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 fy प्लस 2
kz टू एच एफ एच नहीं, इसमें यूजुअली m लेते हैं, तो 2mz प्लस k इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। एंड यहाँ पे इस जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होगा, ध्यान से देखो, सेंटर विल बी -g, -f m, एंड रेडियस क्या होगा, ध्यान से देखो, रेडियस इज, यहाँ पे वी हैव k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, so that means r is under root alpha square plus beta square plus gamma square minus k, एंड अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे मैंने किससे रिप्लेस किया है, -g -f -m से, -g, so can I say that radius will be equal to under root g square plus f square plus m square minus k, ये बिल्कुल वैसा ही है, कैसा, जैसे सर्कल में होता था, है ना, एकदम वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन करो, चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर passing through 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1. हाँ जी, आया, हाँ ईशान, करेक्ट, सही है। सर्वेश करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, हाँ ईशान करेक्ट, ठीक है।
देखो क्या करें इसमें, कैसे करें, कुछ नहीं करना इसमें, अपने को बस सिंपल सा है कि भाई एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखें तो इट इज लाइक 2gx x square plus y square plus z square plus 2gx plus 2fy plus 2mz plus k equal to 0, right? It passes through 0 0 0 0 0 0 से पास करता है तो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 0 0 0, यहाँ से k 0 आ गया। देन 1 0 0 से पास करता है तो यहाँ से हम 1 0 0 डालेंगे, सो विल गेट 1 plus 2gx, 1 plus 2g equal to 0, that means 2g equals to -1। सिमिलरली ये 0 1 0 से पास करता है तो इसको 0 1 0 तो 1 plus 2f 0, so basically 2f is -1। सिमिलरली 0 0 1 से पास करता है ये तो we will get 1 plus 2m is 0, that is 2m is -1। तो हम बस ये इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, we'll get x square plus y square plus z square minus x minus y minus z equal to 0, correct? Done, sir. Done, okay। Next question. Find the equation of the sphere which has center at the origin and touches the line 2 into x plus 1 is equal to 2 minus y is equal to z plus 3 is equal to z plus 3 करो।
कैसे करें? Ishan, correct, good. This is a sphere centered at origin and it is touching the line, this. And this is actually, I'd say, x plus 1 upon 1 by 2 is equal to y minus 2 upon minus 1 is equal to z plus 3 by 1, right? It is touching this line here, huh? करेक्ट, रेडियस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. अभी अपने को पता है कि ये सिंस सेंटर्ड एट ओरिजिन है, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस इक्वेशन. बस अपने को आर निकालना है. तो ये आर कैसे निकालें? देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक देखो दो मेथड्स यहाँ पे कर सकते हैं, दो अप्रोच यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं. कि ऐसा करते हैं कि इसको इक्वल टू लैम्डा लेता हूँ मैं, तो एक जनरल पॉइंट निकालूंगा ये लाइन पे. जनरल पॉइंट क्या आएगा? -1 प्लस लैम्डा बाय 2, कॉमा 2 माइनस लैम्डा, कॉमा -3 प्लस लैम्डा. ये पॉइंट मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है. तो ओ ए के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ओ एज डी आर, ये क्या होंगे? -1 प्लस लैम्डा बाय 2 -0, दैट 2 माइनस लैम्डा -0, कॉमा -3 प्लस लैम्डा -0, राइट. ये ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज हैं. एंड इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? हाफ, कॉमा -1, कॉमा 1. तो बस इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है अपने को, है ना. सो इट विल बी हाफ इंटू -1 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू -3 प्लस लैम्डा. दिस शुड बी 0. इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट -हाफ लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा 5 बाय 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 9 बाय 4 लैम्डा, right. And this will be -half -2 -5 by 2. This is -2 -3 -5 -5 and -1 by 2, that is -11 by 2, equal to 0. So that means lambda is what? 22 by 9. Lambda is 22 by 9. तो इसका जो a है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो a आ गया अपने पास. क्या? -1 प्लस लैम्डा बाय 2. इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. That is -1 plus 11 by 9, basically minus, so it will be 2 by 9, then 2 minus 22 by 9, 18, so -4 by 9, and -3, so 27, -5 by 9, right. ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए. you just have to find OA ना. OA ही है तो रेडियस क्या है? OA. so this will be under root 2 by 9 square plus 4 -4 by 9 square plus -5 by 9 square, correct. So this will be 1 by 9 and 4 plus 16, 20 plus this 25, 45, root 45 by 9. No, wait, 20, 45 by not 9, 81. ठीक है. So that means under root 5 by 9. ठीक है, बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट द इक्वेशन x square plus y square plus z square is equal to 5 by 9. So that's the equation, right? Any doubt in this?
Done, sir. Okay. I write down the next one. Find the equation of the sphere which passes through one comma 0 comma 0, 0 comma 1 comma 0, and 0 comma 0 comma 1, and whose center lies on the plane 3x minus y plus z equal to 2. आया क्या? No, Sarvesh. Just check it again. Prashast, it's नहीं ठीक नहीं है प्रशस्त, चेक करो. Ishan, it's not correct. कैसे करें? कैसे किया ये, मतलब
कुछ तो आप लोगों ने अप्रोच यहाँ पे लगाई है बट आंसर सही नहीं आ रहा। एक बार अप्रोच बताएगा कोई? assume जनरल इक्वेशन। अच्छा देन ठीक है, जनरल इक्वेशन लिख ली मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2mz plus k equal to 0. Then it passes through 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इनसे आ गया तो वीनो यहाँ पे 1 0 0 से पास करता है। So from there we'll get to know that 1 plus 2g plus k, this is 0. ऐसे ही 0 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1 plus 2f plus k equal to 0. जो 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग so 1 plus 2m plus k equal to 0. ठीक है, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे देखो g इक्वल टू एफ आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे देखो f इक्वल टू m आएगा। बेसिकली g इक्वल टू f इक्वल टू m है, राइट? एंड नाउ इट इज सेइंग दैट सेंटर ऑफ दिस स्फीयर लाइज ऑन दैट प्लेन। तो इसका सेंटर क्या होगा? minus minus g comma correct, minus g comma minus f comma minus m, and we know that g equal to f equal to m. I can say minus g comma minus g comma minus g, and this lies on this plane 3x minus y plus z equal to 2. तो मैं इसको सेटिस्फाई करवा देता हूँ। तो 3 into minus g plus minus g is equal to 2. So from here we have minus 4g plus g, that is minus 3g equal to 2, that is g equal to minus 2 by 3. तो g equal to minus 2 by 3 आ गया। g equal to minus 2 by 3 आ गया तो इसको इसमें सेटिस्फाई, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। From there we'll get k. So k is 4 by 3 minus 1, 1 by 3. तो उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। We have x square plus y square plus z square plus 2gx, 2g, that is minus 4 by 3x minus 4 by 3y minus 4 by 3z plus 1 by 3 equal to 0. That is 3 times. हाँ ठीक है, अच्छा ये आंसर आया था किसी का, तो इसका था ये हाँ ईशान सर्वेश, करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, ईशान सर्वेश करेक्ट। हाँ तो ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड इसके जो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज वो सब कर लो आप। विल डिस्कस द डाउट्स दैट यू हैव। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। वन ने किया है, हाँ तो सारा करो स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस। यस ईशान, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक द डाउट्स स्टार्टिंग में, तो कर लेना भैया इसको, है ना? तो कोई फायदा नहीं है सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से अगर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मतलब, अच्छा ये किया नहीं है क्या भाई? वेक्टर्स तो हो गया ना तुम्हारा पहले, तो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये सब नहीं किया क्या? हाँ
क्या नहीं किया? सही में नहीं किया? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट, ये सब नहीं किया है? अरे वेक्टर्स हुआ नहीं है क्या? मेरे को तो यही बोला वेक्टर्स हो गया, 3D चालू करना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो सब हो गया है। Yes, sir. पर ये लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये नहीं हुआ है। हाँ यस सर। अच्छा जी, वो तो एकदम बेसिक होता है, उसका तो बहुत जगह यूज होता है यार। चलो ठीक है, बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको। करते हैं, वो तो जरूरी चीज है बहुत, उसके बिना तो ये चैप्टर कैसे होगा। चलो करते हैं। एक बार ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको। ठीक है, ओके देन, कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ आज रिजल्ट आया। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे।